Hello friends, welcome to new video based on heating effect of electric current. Heating effect of electric current, as we all of know, heat. Whenever we use such applications, because of flow of electron, as you can see, an electric current pass through a conductor, some amount of heat is generated due to collision occur between atoms and their electrons. As you can see here, atoms are there, negative charge electrons also there and positive charge also there. They collide with each other, and because of that collision, they start to strike with each other, and because of collision, heat evolve. As you can see over here on the screen, heat is generated because of flow of electron. In this particular figure, you are able to see electron moves from negative terminal of the battery to the positive terminal of the battery, and because of this flow of electron, the charge flows opposite side to the flow of electron, and due to this opposite side flow, they collide with each other. Because of that collision, as we know, energy conservation law, energy neither created nor destroyed, it just convert from one form to another form. Here energy conservation means energy conversion is take place. That energy conversion is most common example are electric iron, electric toaster, electric oven, electric kettle and electric heater are some basic example of it. As you can see on the screen, iron, toaster, oven, electric kettle which is used for making tea, and the heater. Now we are not using but the heater. Now we are discuss about coil. As you can see on the screen, there was a filament which is look little bit reddish one. This look reddish one, this is also known as induction cooktop. Nowadays in market you will able to see these things. When you switch on the knob which is given at the particular phase, they give a particular knob. When we just start that knob, when we make the knob on, at that time when we are making this, now you can see on the screen, when we are going to on the knob, when we make the knob to be open, when it will be open, at that time the electricity start flow, and because of that electricity, as we are know, they collide with each other, and because of that collision, the electricity converted into heat, that is known as heating effect. As we open the knob, the filament start burning itself and turn into red. We know very well, whenever the heat is generated, max amount of equipments and max amount of equipments which we have able to see, they turn into red. Whatever the equipments are there, as we know very well in our home, induction cooktops are there. Induction cooktops so basically use only and only electrical energy to convert itself into heat energy. This is also one example of conversion of energy, that is conversion of electricity to heat, which is nothing but the, and because of this only the electricity start to flow. As we know, electrons, when electrons start moving, at that time because of collision, electron turn into the filamentic burn element. Because of that burn nature, you are able to see, because of this nature, when electricity flow throughout the device, at that time whenever first collision occur, at that time only heat is generated. देखिए आपको मेरे स्क्रीन के ऊपर अभी दिख रहा होगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करना शुरू कर रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है. ये जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेट हो रही है, आप देख सकते हो, जो इनर सरफेस है इंडक्शन कुकटॉप का, जो इनर सरफेस है, सबसे पहले वो रेड हॉट हुआ है, एंड जो आउटर सरफेस है स्टिल अभी वो रेड हॉट नहीं हुआ है. क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से निकले, पॉजिटिव टर्मिनल से निकले, तो सबसे पहले ये इनर सरफेस के ऊपर यहाँ पे कोलिजन हुआ, और जब इनर सरफेस के ऊपर सबसे पहला कोलिजन हुआ, उसी वजह से सबसे पहले वहाँ पे हीट जनरेट हुई.
हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग यही देखते हैं कि हीट जनरेट कैसे होती है, हीट जनरेट होने की वजह से कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अपने को ये बात सेवरल टाइम्स हमने वीडियो में भी देखा है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो फ्रॉम that negative terminal electrons flows from negative terminal of the battery to the positive terminal of the battery. In India we have seen across our home that is the current flow throughout the home is nothing but the 220 volt. हमारे घरों में जो होता है वो 220 वोल्ट का होता है। अगर आपने देखा है तो यहाँ पे मैं आपको दो एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। ओल्ड डिज़ाइन भी एक है, न्यू डिज़ाइन भी एक है। ओल्ड डिज़ाइन में ये प्रॉब्लम होता था कि इसका फिलामेंट जो है वो टोटली बर्न होना शुरू होता था। और उसमें कैसे था, एक तो ये टोटल बर्न होने की वजह से क्या होता था मालूम है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी, जिस वजह से होता ऐसे था कि अगर 800 रुपये में सिलेंडर आता है जो 1 महीना चलता है, तो इसको लगाने की वजह से सिलेंडर तो चल रहा है 2 महीने, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है 1000 रुपीज़। मतलब एक से एक ही हो रहा है ना, हमारे पास जो है वही हो रहा है। लेकिन आजकल मॉडिफिकेशन आने लग गए हैं। इस मॉडिफिकेशन जो आप न्यू डिज़ाइन में देख रहे हैं, ये न्यू डिज़ाइन का मॉडिफिकेशन और कुछ भी नहीं है बच्चों। ये न्यू डिज़ाइन का मॉडिफिकेशन रेजिस्टेंस के ऊपर बेस्ड है। जितना पर्टिकुलर एरिया में रेजिस्टेंस है उतनी हीट वहाँ पे है। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया है, रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, इट कन्वर्ट दैट इज़ हाई इलेक्ट्रिसिटी इनटू लो इलेक्ट्रिसिटी, एंड एज पर द रिक्वायरमेंट इट ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। रेजिस्टेंस का सिर्फ इतना ही काम नहीं है कि वो हाई वोल्टेज का कन्वर्जन लो में करे या फिर लो का कन्वर्जन हाई में करे, सिर्फ इतना नहीं है। लो का तो हाई में होगा ही नहीं, डेफिनेटली इट्स नॉट हैपन। द मेन थिंग एंड द बेसिक थिंग इज कि इट कन्वर्ट हाई इलेक्ट्रिकल वोल्टेज इनटू लो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज। दैट्स व्हाट जो ओल्ड डिज़ाइन है वो एग्जिस्ट होने लग गया। एंड विथ द हेल्प ऑफ मॉडिफाइड रेजिस्टर, जितने भी मॉडिफाइड रेजिस्टर आजकल हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ दैट मॉडिफाइड रेजिस्टर हम लोग हीटिंग इफेक्ट को क्लियरली विजिबल कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बल्ब का। बल्ब, एन इलेक्ट्रिक बल्ब कंसिस्ट ऑफ अ फिलामेंट। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, फर्स्ट ऑफ ऑल फिलामेंट स्टार्ट बर्निंग इटसेल्फ। बिकॉज ऑफ दैट heat transfer in the form of conduction, and because of this heat the bulb get self luminous. You know, the construction of this bulb is made up of a metal with a high melting point such as a tungsten. अगर आपको आया कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि फिलामेंट बल्ब जो है उसमें फिलामेंट किस चीज़ का लगता है, तो यू हैव टू नो दैट इज टंगस्टन फिलामेंट which has the melting point approximately equals to 3380 degrees centigrade. Up to that much it will be heat itself and gives a luminous intensity. The bulb are usually filled with the chemically inactive nitrogen and argon which present in the oxidation gases to be prolong the life of filament. Because of, as we know, the glass cannot be sustained itself up to 3380 degrees Celsius. So that's what it requires some adjustment. Next example is an iron. An electric iron consists of a coil of high resistance covered by mica sheet and kept inside a heavy metal block. As you can see the mica sheet over there, second metal block also there, and in between that two there was a particular segment of filament which is joint itself with the help of bearings and the rings with the help of nuts and all. Now here you are able to see, जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, देखिए फिलामेंट के साइड वाला रीजन जो है रेड होता गया। इनिशियली फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज, ऐसे करते करते वो पूरा जो है वो हीट हुआ। क्यों? द मिका शीट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट। दैट्स व्हाट ओवर हियर मिका शीट वॉज बीन यूज्ड। अगर वहाँ पे गुड कंडक्टर यूज़ किया जाए तो क्या होगा, पूरा बॉडी जो है वो आपको शॉक करेगा। सेकेंड बेस्ट एग्जाम्पल इज़ वाटर गीज़र। एज यू कैन सी वाटर गीज़र तो हमारे घरों में नॉर्मली सब लोग हम लोग देखते ही हैं कि गीज़र का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, वो किसके लिए यूज़ होता है। तो गीज़र हमारे घर में हॉट वाटर को प्रोवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं। एज वी ऑल ऑफ नो, इनसाइड द गीज़र इट प्लेस सम रॉड एंड द हेलिकल स्ट्रक्चर विच इज़ सराउंडेड विथ द सीमेंट, और ये सीमेंट होता है पोर्सोलिन का सीमेंट। उसके अंदर पोर्सोलिन ऐड किया जाता है एंड हाई रेजिस्टिव पावर भी ऐड किया जाता है। इसके अंदर भी दो एलिमेंट होते हैं, दो कॉइल होते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो ये जो कैप है उसके पीछे आपने देखा होगा दो एलिमेंट है, फिलामेंट है, ऊपर से एक कॉक है
जो कि वाटर को अंदर लेके जाता है। एंड सेकेंड, जैसे पूरा वाटर अंदर चला जाता है वैसे ही वहाँ पे क्या होता है, ये दोनों जो अपसाइड एंड डाउन साइड कॉर्क है, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे पानी इसके अंदर भर गया, पूरा पानी जैसे इसके अंदर भर गया, वैसे ही अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉर्क का नॉब जो है स्टार्ट हो जाएगा एंड अपने को कॉर्क में से क्या हो जाएगा, हॉट वाटर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। With the help of this heating element, you will get the hot water from here. Otherwise, geyser has its own self inlet and outlet too. With the help of that inlet and outlet, it's self adjustable. And second thing, we'll get the hot water without dipping our hand inside the geyser. हम लोगों को गीज़र के अंदर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा, मेजरमेंटिक डिवाइसेस भी होते हैं, आजकल मॉडिफाइड गीज़र आ चुके हैं, जिससे हम लोगों को पता चल ही जाता है कि गीज़र में मतलब एग्जैक्टली क्या पोर्शन हम लोगों को देखने को मिलता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव वेरी वेल नोन एंड फेमस, मीन्स फेमस तो नहीं बोल सकते, लेकिन नॉर्मल पर्टिकुलर ईच एंड एवरी हाउस होल्ड मीन्स ईच एंड एवरी हाउस होल्ड वर्क वी रिक्वायर माइक्रोवेव। माइक्रोवेव के अंदर भी इसी प्रकार की सेटिंग्स होती है। अब इसमें एग्जैक्टली होता क्या है, अगर हम लोग माइक्रोवेव की साइड पोर्शन को हटा देते तो इनसाइड दैट विल सी द मदरबोर्ड। हम लोग वहाँ पे देखते हैं उसका मदरबोर्ड, और मदरबोर्ड में सबसे ऊपर लगाया जाता है जो ये कॉर्क साइड, जैसे आप देख रहे हो वाइट कलर का, ये कॉर्क साइड जो है ये होता है रेडियो एक्टिव फिलामेंट। अगर हम लोग इस रेडियो एक्टिव फिलामेंट को बाहर निकाल लेते हैं तो अपने को अंदर एक कंस्ट्रक्शन मिलेगा जो कि रिंग साइड जैसा होगा, मोटर जैसा होगा। आपने देखा होगा पानी की मोटर भी अगर ज़्यादा देर तक हम लोग चलाते हैं तो वो गर्म होने लगती है। आप पानी की मोटर को ज़्यादा देर तक चलाइए तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। अगर आपने इसको सेपरेट किया तो आपको मिलेंगे दो मैग्नेट्स, इसके बीच में रहेंगे मेटल कैप बॉडी, उसके अंदर रहेगा रोटेटर एंड इनसाइड द रोटेटर वन आर्मेचर इज प्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ कॉपर कॉन्टलेन। जो कॉपर का कॉन्टलेन होता है ये होता है लूप लाइक स्ट्रक्चर। अगर आपने, मैं इसके बाद में आपको इलेक्ट्रिक कॉइल हीटिंग एलिमेंट वाली एक इलेक्ट्रिक कॉइल भी दिखाऊंगा मैं, जिसमें आपको ये क्लियरली दिखाई देगा कि वो कॉइल क्यों बनाते हैं हम लोग हीटिंग प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि कॉइल क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी हीट प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करता है। नाउ इनसाइड द माइक्रोवेव व्हाट एग्जैक्टली हैपन, सी whenever the current flow inside the coil start heat itself, and because of this heating the outer armature core also start heating, and जैसे वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है वो पूरी हीट जो होती है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते होते और इक्वली उसका डिस्ट्रीब्यूशन होने लगता है, जिस वजह से क्या होता है कि पूरी हीट जो है माइक्रोवेव के अंदर ईजिली मीन्स विच इज़ ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, जितने भी पॉसिबल डायरेक्शन है उन सारे पॉसिबल डायरेक्शन में वो स्प्रेड होती है। जैसे आपने इसके कंस्ट्रक्शन में देखा है दो मैग्नेटिक चीज़। बच्चों आपको ये बात हमेशा नोटिस करनी है, या फिर आप हमेशा ये बात नोटिस कर सकते हो कि हम लोग माइक्रोवेव के अंदर कभी भी स्टील स्पून्स नहीं रखते हैं। स्टील स्पून क्यों नहीं रखते हैं, क्या रीज़न है स्टील स्पून नहीं रखने का, तो यही रीज़न है, ये मैग्नेट क्या करेगा, उन स्टील्स को क्या करेगा, फेरो मैग्नेटाइज कर देगा, जिस वजह से क्या हो जाएगा वहाँ पे माइक्रोवेव के अंदर ब्लास्ट हो जाएगा। माइक्रोवेव के अंदर ब्लास्ट भी हो सकता है, एंड सेकेंड थिंग माइक्रोवेव ब्लास्ट होने की वजह से आपके पूरे घर के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जितने भी कनेक्टेड हो गए एट पर्टिकुलर उस मोमेंट पे, वो सारे इक्विपमेंट्स ख़राब होने के भी चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है बढ़ जाते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं, दैट्स व्हाट वी नॉट पुट इनसाइड माइक्रोवेव थिंग्स विच आर बेसिकली मेड बाय आयरन और द आर्टिकल विच कैरीज द करंट। यहाँ पे देखिए दो मैग्नेट्स हैं, ये दो मैग्नेट क्या करेंगे, आए वाले पूरी हीट को इवनली स्प्रेड करेंगे इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये और कुछ भी नहीं है, तो ये एक फेरो मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट फेरो मैग्नेट हीट जो है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, जो डिवाइस के अंदर जो हीट जाएगी वो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ये और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में एग्जैक्टली हीट कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे इक्विपमेंट्स चलते हैं, उनमें एग्जैक्टली क्या पोर्शन होता है, ये सारे हम लोग उसके सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स की स्टडी कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कॉइल अभी क्या हो रहा है, रोटेट होना स्टार्ट हो रहा है, जिस वजह से क्या होगा वहाँ पे जितना भी कॉइल रोटेट होगा या फिर कॉइल जितनी ज़्यादा रोटेट होने लगेगी उतना वहाँ पे क्या होने लग जाएगा, वहाँ पे जो है हीटिंग फेनोमेनन स्टार्ट हो जाएगा। ये हीटिंग फेनोमेनन मैग्नेट के साथ रिएक्ट करेगा, जैसे कि आप यहाँ पे आजू बाजू में ब्लू स्ट्रिप्स देख सकते हैं। ये ब्लू स्ट्रिप्स क्या करेंगी, अंदर की पूरी जो भी हीट वहाँ पे क्रिएट हुई है, जो कि प्लस
माइनस प्लस माइनस अल्टरनेट साइकिल में चल रही है। देखो यहाँ पे आप देख रहा होगा आपको, एक बार हीट जो है एक बार एक प्लस हो रहा है दूसरा माइनस, एक बार एक प्लस हो रहा है दूसरा माइनस हो रहा है, मीन्स दिस अल्टरनेट पोर्शन कंटिन्यूअसली हेल्ड, एंड बिकॉज ऑफ दैट अल्टरनेटली कंटिन्यूअसली पोर्शन हेल्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक यहाँ पे एक वेव क्रिएट होती है। अब इस वेव को ये मैग्नेट क्या करता है, इस वेव को ये वाला मैग्नेट इनसाइड द कंटेनर, जैसे कि यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन देख सकते हो, देखो अब ये दोनों मैग्नेट यहाँ पे चिपक चुके हैं, ये दोनों मैग्नेट अभी अटैच अलाइन होंगे इस केस के साथ में। नाउ द मैग्नेट विल अलाइन विद द हेल्प ऑफ विथ केस, this case will be installed inside the microwave and upside portion will be fit or adjusted as positive and negative terminal, as whatever the positive and the negative terminals are there, with respect to that it will be self adjusted when we close the door at that time। देखो जैसे मैंने बताया आप हम लोग हीट में देख रहे थे, देखो कैसे एक प्लस का नेगेटिव की साइड में, नेगेटिव का प्लस की साइड में, यहाँ पे भी वही फेनोमेनन हो रहा है, यहाँ पे और कोई फेनोमेनन नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इन सारे मॉलिक्यूल्स को ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। जो भी कंटेनर, जो भी डिवाइस में, स्टोरी में जो भी हम लोग रख रहे हैं ना, वो सारे रोटेट हो रहे हैं। रोटेट हो रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ वन टाइप ऑफ कोलिजन ही परफॉर्म कर रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट कोलिजन दे हैव स्टार्टेड देमसेल्फ इनटू अ हीटिंग मोड। जैसे कि हम लोग पहले ही जानते हैं कि हीटिंग इफेक्ट जो है सिर्फ और सिर्फ कोलिजन की वजह से होता है। जब दो मॉलिक्यूल, व्हेन टू मॉलिक्यूल्स आर कोलाइड विथ ईच अदर, एट दैट टाइम द कोलिजन टेक प्लेस एंड बिकॉज ऑफ दैट कोलिजन हीट विल बी प्रोड्यूस। यही फेनोमेनन हम लोग माइक्रोवेव के अंदर देख रहे हैं। बच्चों सिर्फ माइक्रोवेव ही नहीं, यहाँ पे तो ठीक है चलो हम लोगों ने माइक्रोवेव के बारे में देख लिया। माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर, अगर आप बोलोगे सर रेफ्रिजरेटर तो ठंडा करता है ना, ऐसे कैसे? नो, रेफ्रिजरेटर मीन्स व्हाट, दोज रेफ्रिजरेटर विच इज़ आउटर सरफेस, अगर आपने आउटर साइड को हाथ लगा के देखा है तो वो पूरा आपको रेड हॉट लगेगा, एंड इनसाइड में कैसा रहेगा, वो कूल्ड रहेगा। वो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा डिवाइस है जो रिवर्स प्रोसेस आपको शो करता है, दैट इज़ कन्वर्ट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करता है। जैसे कि ऑल द सेगमेंट्स में होता है इलेक्ट्रिसिटी मीन्स हीट ओनली ट्रांसफ़र फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट, बट इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एजम्पशन है जिसका नाम है रेफ्रिजरेटर, जो कि इरिवर्सिबल प्रोसेस शो करता है, जो कि होती है हीट ट्रैवल फ्रॉम कोल्ड ऑब्जेक्ट टू हॉट ऑब्जेक्ट। अब ये कैसे होता है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, ज़रूर बताना। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, अदरवाइज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।